A very pleasant morning to all the dear students of class 7. As we have started with our chapter 3, the data handling, and we have discussed about the data collection and its organization. And then in the previous video, we have started with the ways of measuring central tendency of a data. Okay, and why do we need to measure a central tendency? We have discussed it earlier in the previous video, and also we are to discuss in total the three methods of measuring the central tendency that are given in your book: arithmetic mean, mode, and median. In the previous video, I have discussed the arithmetic mean. Okay, so that was the sum of all the observation divided by number of observation, and we just find the average value of a data around which the most of the observations are occurring. So that was the average or arithmetic mean. That was a method that is to measure the central tendency of a given data. Now in today's video again we will discuss the other two remaining methods of measuring the central tendency, and also the word central tendency should be very clear in your mind, and I have discussed the word in detail in the previous video. तो आपको central tendency word याद रखना है, ठीक है? ये आपके अब in 7th standard and in higher standard you will be listening this word more often. Okay, so you must know its meaning clearly. So now in this video today I will discuss the mode of a data and median of a data and its significance. So for understanding the mode, class 7, this is the explanation. You need not to write it in your notes. Okay, just understand this, that what is the significance of mode. So let us consider an example that there is a shopkeeper and he has a weekly sale for the shirts of different sizes. Okay, and the sizes and the number of shirts sold can be like this, that sizes and number of shirt, okay, that are sold. So I'm just making roughly a table. So if there is size 90 centimeter, 95 centimeter, 100 centimeter, 105 centimeter, and 110 centimeter, and the total of the shirts. So let us consider that 90 centimeters t-shirts or the shirts are sold 8, 95 centimeter shirts are sold 22, 100 centimeter are sold 32. Okay, 32 are the number of shirts that are sold and the size is 100 centimeter. So here 37 shirts are sold of 105 centimeter and 106 shirts are sold for 110 centimeter. So total shirts sold are 105. Okay, so this is basically the data with the shopkeeper of a weekly sale of his shirts. So he want to buy new shirts for the selling. Okay, for selling the shirts, for selling the shirts he want to buy new shirts. So he is checking that कि मुझे कौन सी साइज़ की शर्ट खरीदनी चाहिए, ठीक है, कौन सी साइज़ की शर्ट का मतलब इस डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मुझे किस साइज़ की शर्ट को ज़्यादा खरीदना चाहिए, किसको कम खरीदना चाहिए, ठीक है, वो ये चेक करना चाहता है इस डेटा से. तो उसके पास समझ लीजिए कि उसके पास सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने का एक तरीका सिर्फ उसने सीखा है मीन. ओके, मीन, एवरेज. उसने क्या किया, इन शर्ट के साइजेस का एवरेज निकाल दिया मतलब सम कर दिया साइज़ का अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर दिया उसने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. तो तब जब आप इनका सम करेंगे, दिस इज योर टोटल 105 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 साइजेस हैं यहाँ पर, यू विल गेट 21. ठीक है, मीन क्या निकल के आया, 21. तो 21 जो है मीन निकल के आया, मीन्स नंबर ऑफ शर्ट्स उसको ऑन एन एवरेज 21 खरीदनी चाहिए, ये निकल के आया.
तो क्या आप इससे इस जो आपका ये मीन ये एवरेज निकल के आया है, तो क्या इससे शॉपकीपर की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी कि वो नेक्स्ट वीक की सेल के लिए कितनी शर्ट्स खरीदे? क्योंकि वो देख सकता है कि 90 सेंटीमीटर के लिए 90 सेंटीमीटर की 8 शर्ट्स सेल हुई हैं, 95 सेंटीमीटर की 22 हुई हैं, 100 सेंटीमीटर की 32, 105 सेंटीमीटर की 37। लेकिन अगर वो 21 ही ऑन एन एवरेज हर एक साइज़ की 21 शर्ट्स अगर वो खरीद के ले आता है, जैसे 90 सेंटीमीटर की उसने 21 खरीद ली, ठीक है, 105 सेंटीमीटर की भी उसने 21 शर्ट्स खरीद ली, तो क्या वो अपनी नीड को फुलफ़िल कर पाएगा? क्या अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि 105 सेंटीमीटर की तो 37 शर्ट्स यूज़ होनी है, लेकिन उसने एवरेज निकाला कि ऑन एन एवरेज 21 शर्ट्स चाहिए। तो हर एक साइज़ की 21 शर्ट निकालने से लेकर आने से उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होगी। इट मीन्स कि मीन निकालने से उसकी जो जो वो चाहता है निकालना, जो वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, वो मीन निकालने से सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, देन दिस शॉपकीपर, लेट दिस शॉपकीपर एज ए, दिस शॉपकीपर went to another shopkeeper for his problem. To solve his problem, he went to another shopkeeper B. Okay, so the shopkeeper B also has the same data, that which sizes of shirt are sold in which number. Okay, तो हर एक शर्ट का उसके पास भी नंबर था कि कितनी कितनी सेल हुई हैं हर एक साइज़ की। तो शॉपकीपर बी ने शॉपकीपर ए को बताया कि माय फ्रेंड, यू सी दैट साइज विच इज़ सोल्ड मैक्सिमम। ठीक है, उसने कहा कि आप अपने डेटा में ये ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सा साइज मैक्सिमम सेल हुआ है। तो उसने मैक्सिमम साइज देखा कि 105 सेंटीमीटर इज़ द मैक्सिमम साइज जो आपका सेल हुआ है, विच इज़ 37। सो देयरफॉर उससे ये उसको पता चला कि इसका मतलब उसको 37 शर्ट्स तो खरीदनी ही खरीदनी है, क्योंकि 37 तो उसकी रिक्वायरमेंट है। 37 जो है वो मैक्सिमम है जो सेल हो रहा है। 37 नंबर ऑफ शर्ट्स मैक्सिमम है जो 105 सेंटीमीटर के लिए सेल हो रही हैं, तो उसको 105 सेंटीमीटर की 37 शर्ट्स तो खरीदनी ही खरीदनी है। शॉपकीपर बी ने उसको ये हेल्प की। तो आपने देखा कि इन ऑब्जर्वेशंस में जो 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर एंड 110 सेंटीमीटर, ठीक है, दीज आर द 5 ऑब्जर्वेशंस। और इन ऑब्जर्वेशन में जो नंबर ऑफ अकरेंस, जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ शर्ट्स सेल, वो मैक्सिमम किसका है? मैक्सिमम कौन सा है? 37। सो हेयर 37 इज द मोड ऑफ दिस डेटा एंड 37 इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर दिस टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, तो इस टाइप के डेटा के लिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का तरीका है मोड, विच इज़ 37। सो देयरफॉर आई से, तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर आपको मोड यूज़ करना था, इससे आपकी रिक्वायरमेंट, मीन से आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही थी। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, इसको लिखना नहीं है, यू विल राइट द डेफिनेशन फॉर मोड। ओके, the definition for mode and the mode of a set of observations is the observation which occurs the most often. Okay, so the most often occurrence was observation 105 centimeter. So 105 centimeter was the mode of the sizes. ठीक है ना, नंबर का नहीं, शर्ट्स का नंबर, उसकी फ्रीक्वेंसी 37 है, लेकिन मोड क्या है? 105 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस आपकी क्या है? साइज का, शर्ट का साइज, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन है शर्ट का साइज, तो आपका मोड है 105 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू दैट एग्जांपल। सो मोड, द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, दैट इज़ द मोड, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा आ रही है। सो एग्जाम्पल में फाइंड द मोड ऑफ गिवन नंबर्स, तो हमें गिवन नंबर्स का मोड निकालना है कि इन नंबर्स में से मोड क्या है, इन नंबर्स में से मोड क्या है, द मैक्सिमम अकरिंग नंबर कौन सा है। ठीक है, तो इसका दो तरीके हो सकते हैं। पहले तो कि अरेंज द नंबर्स वी गेट, सो इफ वी अरेंज द नंबर्स, if we arrange these numbers, the same numbers together, okay, same numbers together are arranged, तो आपने देखा 1 1, उसके बाद आपको यहाँ पर 1 मिला तो आपने 1 पुट कर दिया, ओके कंप्लीट, देन 2 2 2 एंड 2,
तो टोटल आपको 4 2s मिले, देन यू गेट 3 और उसके बाद 4 1 और 4 2, मतलब 4 4। तो आपने इनको अरेंज कर लिया और इससे आपने देखा कि 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, 2 कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम्स, 3 1 टाइम एंड 4 2 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सा नंबर आ रहा है, 2। सो देयरफॉर mode of this observation, mode of the given numbers is, mode of given numbers is 2। ठीक है, you get mode as 2। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लीजिए टेली बार्स से या टेली मार्क्स से। ठीक है, सो उससे आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। जैसे 1 अगर आपने देखा तो आप 1 काउंट करेंगे तो 3 टाइम्स है, फ्रीक्वेंसी 3। 2 आपने देखा 4 टाइम्स है, frequency will be 4, 3 is 1 time, frequency is 1, 4 is your 2 time, the frequency will be 2। So the maximum frequency is 4, maximum frequency, ये maximum है तो therefore mode is 2। ठीक है, mode 4 मत बोल देना बेटा, mode 4 नहीं होगा, मैं दोबारा से इस पर फोकस कर रही हूँ, mode 4 नहीं होगा, mode होगा 2, क्योंकि ऑब्जर्वेशन 2 है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो आपको दोनों चीज़ों को समझना है ध्यान से। ठीक है, सो दिस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग द मोड, दिस इज़ अबाउट मोड। नाउ अब हमने मोड सीखा, नाउ वी विल डिस्कस अनदर सिचुएशन, अनदर एग्जांपल, जिसमें हम समझेंगे कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपकी सेंट्रल टेंडेंसी मीन से निकालें तो भी हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होता, मोड से निकालें तो भी पर्पस फुलफिल नहीं होता। तो उसके लिए हमने थर्ड टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखी, जिसको हम अब नेक्स्ट अभी समझेंगे। ओके, फॉर मोड, ओके, द डेफिनेशन फॉर मोड एंड द मोड ऑफ अ set of observations is the observation which occurs the most often। okay, so the most often occurrence was observation 105 centimeter, so 105 centimeter was the mode of the sizes। ठीक है ना, नंबर का नहीं, शर्ट्स का नंबर, उसकी फ्रीक्वेंसी 37 है, लेकिन मोड क्या है 105 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस आपकी क्या है, साइज का, शर्ट का साइज, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन है शर्ट का साइज, तो आपका मोड है 105 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू दैट एग्जाम्पल। सो मोड, द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, दैट इज़ द मोड, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा आ रही है। सो एग्जाम्पल में फाइंड द मोड ऑफ गिवन नंबर्स, तो हमें गिवन नंबर्स का मोड निकालना है कि इन नंबर्स में से मोड क्या है, इन नंबर्स में से मोड क्या है, द मैक्सिमम अकरिंग नंबर कौन सा है। ठीक है, तो इसका दो तरीके हो सकते हैं, पहले तो कि अरेंज द नंबर्स वी गेट, सो इफ़ वी अरेंज द नंबर्स, if we arrange these numbers, the same numbers together, okay, same numbers together are arranged, तो आपने देखा 1 1, उसके बाद आपको यहाँ पर 1 मिला तो आपने 1 पुट कर दिया, ओके कंप्लीट, देन 2 2 2 एंड 2, तो टोटल आपको 4 2s मिले, देन यू गेट 3 और उसके बाद 4 1 और 4 2, मतलब 4 4। तो आपने इनको अरेंज कर लिया और इससे आपने देखा कि 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, 2 कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम्स, 3 1 टाइम एंड 4 2 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सा नंबर आ रहा है, 2। सो देयरफॉर मोड ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, मोड ऑफ द गिवन नंबर्स इज, मोड ऑफ गिवन नंबर्स इज 2। ठीक है, यू गेट मोड एज 2। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लीजिए टेली बार्स से या टेली मार्क्स से। ठीक है, सो उससे आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। जैसे 1 अगर आपने देखा तो आप 1 काउंट करेंगे तो 3 टाइम्स है, फ्रीक्वेंसी 3। 2 आपने देखा 4 टाइम्स है, फ्रीक्वेंसी विल बी 4। 3 इज़ 1 टाइम, फ्रीक्वेंसी इज़ 1। 4 इज़ योर 2 टाइम, द फ्रीक्वेंसी विल बी 2। सो द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 4, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये मैक्सिमम है तो देयरफॉर मोड इज 2। ठीक है, मोड 4 मत बोल देना बेटा, मोड 4 नहीं होगा, मैं दोबारा से इस पर फोकस कर रही हूँ, मोड 4 नहीं होगा, मोड होगा 2, क्योंकि ऑब्जर्वेशन 2 है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो आपको दोनों चीज़ों को समझना है ध्यान से। ठीक है, सो दिस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग द मोड,
दिस इज अबाउट मोड. नाउ अब हमने मोड सीखा. नाउ वी विल डिस्कस अनदर सिचुएशन, अनदर एग्जाम्पल, जिसमें हम समझेंगे कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपकी सेंट्रल टेंडेंसी मीन से निकालें तो भी हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होता, मोड से निकालें तो भी पर्पस फुलफिल नहीं होता. तो उसके लिए हमने थर्ड टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखी, जिसको हम अब नेक्स्ट अभी समझेंगे. ओके, सो लेट अस कंसिडर दिस अनदर सिचुएशन एंड दिस इज आल्सो explanation, so you need not to write it in the notebook, just understand this. So consider a group of 17 students with height in centimeter as follows. ठीक है, मैंने आपको 17 स्टूडेंट्स की हाइट प्रोवाइड की है डेटा में, which is given in centimeter. So consider your sports teacher, okay, and he wants to divide the class into two groups such that each group has equal number of students, and one group has students with height lesser than a particular height, and the another group, the second group, must have student greater than the particular height. ओके, सो इट मीन्स वो ये चाहते हैं, आपके स्पोर्ट्स टीचर ये चाहते हैं कि मैं इन 17 स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दूं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, और एक ग्रुप में आपके वो स्टूडेंट्स हों जो जिनकी हाइट किसी पर्टिकुलर हाइट से लेस हो, और दूसरे ग्रुप में वो स्टूडेंट्स हों कि जिनकी हाइट उस वाली पर्टिकुलर हाइट जो आप डिसाइड करने वाले हैं उससे सब ग्रेटर हो. ठीक है, एंड बोथ द 17 स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स एंड 2 इक्वल ग्रुप्स. ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये भी एक सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है. ठीक है, और उन्होंने फाइंड किया मीन. उन्होंने क्या किया, इन हाइट का जो गिवन हाइट है, ऑब्जर्वेशन है जो हाइट है, उनका मीन फाइंड किया. तो मीन फाइंड करना मतलब जितने भी हाइट्स थी सबका समेशन किया, एंड द समेशन विल बी योर 1930 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो ये तो आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, सम ऑफ ऑल द हाइट्स, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 17. सो व्हेन यू डिवाइड इट यू विल गेट 113.5. तो उनको मिला कि मीन हाइट, एवरेज हाइट, मीन हाइट क्या मिली उनको, 113.5. तो उन्होंने क्या किया, 113.5 से कम वाले हाइट के जितने भी बच्चे थे उसको ग्रुप, उन सबको ग्रुप ए में डाल दिया, और 113.5 से यहाँ पर लेस वाले बच्चे डाल दिए, और बी ग्रुप में 113.5 से हाइट से ग्रेटर देन वाले बच्चे डाल दिए. तो जब आप इसमें देखेंगे ना, लेस देन एंड ग्रेटर देन, व्हेन यू विल काउंट एंड ऑब्जर्व यू विल फाइंड दैट एक ग्रुप में 7 स्टूडेंट्स होंगे, दूसरे ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स होंगे. तो ये इक्वल नहीं आया, इट मीन्स मीन निकालना और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना सक्सेसफुल नहीं हुआ. मीन के बाद उन्होंने ट्राई किया मोड. ठीक है, इस डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए उन्होंने ट्राई किया मोड. अब मोड जो था वो क्या होगा, द नंबर ऑफ मोड विल बी दैट हाइट, दैट ऑब्जर्वेशन विच इज अकरिंग मैक्सिमम टाइम. तो यहाँ पर आप इजीली ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि 115 सेंटीमीटर इज अकरिंग मैक्सिमम टाइम. सो मोड क्या हुआ इस डेटा का, 115. ठीक है, 115 सेंटीमीटर इज योर मोड. सो मोड 115 सेंटीमीटर हुआ. उन्होंने अगेन 115 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर हाइट उन्होंने डिसाइड की, और उससे लेस वाले स्टूडेंट्स ग्रुप ए में डाल दिए 115 सेंटीमीटर से, हाइट जिनकी लेस थी. तो अगेन वो 7 आए और इधर 10 आए. ठीक है, अगेन द डिस्ट्रीब्यूशन वाज अनइक्वल, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं था, तो मोड भी सक्सेसफुल नहीं हुआ. फिर किसी स्टूडेंट ने, क्लास 7 के किसी स्टूडेंट ने सजेस्ट किया कि सर आप इन सब हाइट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए. ठीक है, जो भी हाइट गिवन है सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए. सो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, हाइट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको ये सिचुएशन मिली दैट 101, 102, उसके बाद 106, 109, देन 110 आपने असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े ऑर्डर में आपने अरेंज कर लिया. उसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये हाइट्स अरेंज होने के बाद, क्योंकि हमें एक ग्रुप में डालने थे लेस हाइट के और एक ग्रुप में डालने थे मोर हाइट के, तो अगर आप इन 17
नंबर्स की, ये 17 नंबर है, ठीक है, 17 नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं। अगर आप इनकी मिडल वैल्यू देखेंगे कि मिडल नंबर क्या है, मिडल नंबर क्या है जिसकी वजह से ये सारी हाइट जो है, ये सारे नंबर्स जो हैं वो इक्वल टू ग्रुप में डिवाइड हो जाएं, तो वो मिडल नंबर आपको मिलेगा ये वाला नंबर, दिस 115, ठीक है। तो 115, दिस 115 इज द मिडल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मिडल ऑब्जर्वेशन। दिस 115 हैज डिवाइडेड दीज टोटल 17 ऑब्जर्वेशन इनटू 2 इक्वल ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स ईच। यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, वो समझ लीजिए कि 1 स्टूडेंट है और इसकी हाइट 101 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और इसके बाद भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इट मीन्स कि स्पोर्ट्स सर ने क्या किया, आपका 115 मिडिल वैल्यू थी, 115 को मिडिल वैल्यू लेकर 115 से नीचे जितने स्टूडेंट थे उन सबको एक तरफ एक ग्रुप में कर दिया, ग्रुप ए में, जो कि लेसर हाइट के थे, और 115 से जितने ग्रेटर हाइट के थे उनको एक ग्रुप में कर दिया, बचे 115, तो 115 के एक बच्चे को रेफरी बना दिया और एक बच्चे को इस ग्रुप में डाल दिया, 3 बच्चों को ग्रुप बी में डाल दिया इक्वल करने के लिए। बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मिडिल वैल्यू पता चल गई डाटा की, विच इज द मीडियन which helped to divide the students into 2 equal group. So this is the significance of median. और median find करने के लिए it is necessary that you should arrange the data इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो असेंडिंग में कन्वर्ट कीजिए, असेंडिंग में अरेंज कीजिए, या डिसेंडिंग में अरेंज कीजिए, और उसके बाद मिडल वैल्यू को फाइंड करिए, दैट इज द मीडियन। ओके, सो वी विल हैव the definition of median as median when data is arranged in ascending or descending order, the median is given by middle observation, ठीक है। एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दैट आपके पास ये नंबर्स गिवन है और आपको इनका मीडियन निकालना है। सो दिस इज बेसिकली योर एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। सो आपको इनका मीडियन निकालना है इन नंबर्स का, तो यू विल अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। So you will get, so arranging in the ascending order you will get 12 12 13 13 then 14 14 14 16 and 19। अगर मैं मोड पूछूं इस डाटा का तो मोड आपको पता चल रहा है कि 14 इज द मैक्सिमम अकरिंग नंबर, सो मोड इज 14, ठीक है, 3 टाइम्स आ रहा है वो। अगर मीडियन की बात करें तो इसकी मिडल वैल्यू कैसे निकलेगी, इधर देखो 4 ऑब्जर्वेशन है, इधर से भी 4 ऑब्जर्वेशन काउंट करो, तो आपकी मिडल वैल्यू क्या है, 14, 14 इज द मिडल वैल्यू, सो मीडियन इज इक्वल्स टू 14। ओके, और यू कैन सी लाइक दिस, आप ऐसे भी देख सकते हैं। मीडियन को फाइंड करने का तरीका देखिए, आपने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आपने देखा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 9, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 को 2 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है, तभी तो मिडल वैल्यू का मतलब क्या है कि 2 ग्रुप बना दूं मैं, तो 9 को 2 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, बेसिकली 4 मिलेगा, है ना, और 1 रिमाइंडर ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 ऑब्जर्वेशन कंप्लीट आ रही हैं, मतलब 4 इधर आप काउंट कर लीजिए, 4 पीछे से काउंट कर लीजिए, मिडल आपका ये वाला नंबर है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास ये ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास 11 होती, 11, ठीक है, और नंबर इसमें ऐड कर लीजिए, मान लें 19 के बाद उसमें 2 नंबर और ऐड कर लीजिए, तो 11 होती अगर, तो 11 को 2 से डिवाइड करते, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो आपको ये मिलता, इट मीन्स 5, मतलब 5 का ग्रुप बनता, और फिर दूसरा नंबर 5 के बाद जो नंबर आ रहा होता आपका वही मीडियन बनता। तो यहाँ पर आपने ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए सीखा है, जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है तब मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो आप हायर स्टैंडर्ड में सीखेंगे। अभी आपको ओड नंबर से ही डील करना है, क्योंकि ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब होती है बेटा, देखो जैसे 9 है, 9 ओड है, तो ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मैं इजीली 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकती हूँ और मिडिल वैल्यू मेरी सेपरेट हो जाती है,
9 थे तो मैंने 4 के ग्रुप में और 4 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, मिडिल वैल्यू मेरी आ गई। 8 तो हो गए 2 ग्रुप्स में और मिडिल वैल्यू मेरी बीच वाली, एक 9th वाला ऑब्जर्वेशन, समझ सकते हैं आप, ठीक है। सो दिस इज द मीडियन, दिस इज, सो टुडे आई डिस्कस्ड मोड एंड मीडियन. You will complete the notes that I have said and explanation will not be written, and you will try exercise 3.2. All the 5 questions are very easy and simple. You can try and we will discuss that in the next class or in the group also. So this is all for today. Thank you class for watching the video. Complete your work and stay happy and stay safe at home.